是印度。 نحن नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रुकमा। और भारत की ताकत, उसकी बड़ी आबादी, बढ़ती अर्थव्यवस्था, डिजिटल तकनीकों को अपनाने की उसकी क्षमता है और इसे सारी दुनिया न सिर्फ जान रही है, पहचान रही है, बल्कि उसका लोहा भी मान रही है। और कुछ वर्ष पहले जब डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक फिर देश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाने और ज्ञान आधारित डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि के साथ इस देश ने कदम आगे बढ़ाए हैं। कैसा है भारत का डिजिटल अर्थव्यवस्था, कैसा है ये इकोनॉमी कैसे रहेगी और कितना सशक्त हुआ है देश इस मामले में, क्या चुनौतियां हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से अगले 1 घंटे में। Well, as Nikhil was just saying, India is poised to further redefine its already transforming economy. Indian IT companies have already built a global presence and set this example for us. A new digital ecosystem that includes close to 1 billion people has been created at a scale unprecedented anywhere else in the world. When Digital India was launched in 2015, top CEOs from India and abroad committed to invest nearly more than $3 trillion towards this initiative. The CEO said the investments would be utilized towards making smartphones and internet devices at an affordable price, which would help generate jobs in the country as well as reduce the cost of importing them from abroad. In just a few years, that vision has become a reality. A few days ago, the cabinet, with a decision to launch public Wi-Fi hotspots or PM Vani scheme, took this a step further. Let's listen into what the Prime Minister had to say on that day. Today, we have over 750 million internet users. The scale and speed of internet penetration can be seen by the following facts. Half of the total internet users in India were added in the last 4 years. Half of the total internet users are in our rural areas. Our digital size and our digital appetite are unprecedented. Union Minister Ravi Shankar Prasad elaborated on the vision behind Digital India. Let's listen in. The inclusive character of Digital India, which we had conceived, could ultimately reach the common people's life through digital delivery without any middleman. When the COVID came, the issue posed a serious challenge. And then we came with the idea of work from home. And today, 85% of India's IT industry continue to work from home. And now we have finalized it. PM said, make it permanent. And now you can work from anywhere. So this is a great support which we could give to the IT industry during these challenging times. And the whole world is applauding. Well, a number of initiatives are converging to accelerate the expansion of India's already growing economy. India has been encouraging digital innovation for startups, and entrepreneurship has grown significantly. Mobile data will continue to help drive the digital economy. Greater mobile access is expected to cause a rise in mobile penetration to 85 to 90% by 2020. Early adopters of smartphones are likely to be consumers of entertainment and media. Well, Nikhil, we were just discussing a short while back and listening in as SEO leaders were praising India's leap forward in this respect. बिल्कुल निश्चित तौर पर अब एससीओ महासचिव ने खास तौर पर कहा कि जिस तेजी से इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो बढ़ी है, उसको देखकर लगता है, और जितना यहाँ पर टेलीफोन यूजर्स है, जितना इंटरनेट यूजर्स है, उसको देखकर लग रहा है कि एक बहुत बड़ी क्षमता है भारत के अंदर कि सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी और सबसे बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम जो है वो भारत का बन सकता है। True. Let's listen in to what industry heads have to say on this. If the pandemic had struck India just 4 or 5 years earlier, we would have not been in as good a shape as what we are today
with all the connectivity we have. And the credit for that must go to our Prime Minister's Digital India vision, where he motivated the entire industry to roll out broadband in the first 5 years of his first term. And during the pandemic, India has attracted the largest foreign direct investment in its history. One of the big opportunities that I see with this partnership, Facebook and Jio partnership, is the role that we can play together in supporting the millions of small businesses in India, especially now with the impact that COVID is having, and accelerating the move that a lot of businesses have from physical storefronts to digital ones in this digital future. तो बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा कि सारी दुनिया भारत का लोहा मान रही है, किस तरह से जो डिजिटल इकोसिस्टम है वो लगातार भारत का वृहद हो रहा है, विस्तार उसमें उसका फलक जो है वो लगातार बढ़ रहा है। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो इस विषय पर चर्चा करेंगे। सुबिमल भट्टाचार्य जी हैं हमारे साथ में, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। इसके साथ साथ सुरभि अग्रवाल हैं, सीनियर असिस्टेंट एडिटर इकोनॉमिक टाइम्स से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और प्रोफेसर अजय राणा जो IT एक्सपर्ट है वो वही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों बहुत बहुत स्वागत है। और सुरभि अग्रवाल जी, आपके साथ शुरुआत करें। जो डिजिटल इकोसिस्टम जिसकी बात कही जा रही है भारत की, किस तरह से इसको देखती हैं? कितना बड़ा लक्ष्य अभी तक हमने एक्वायर किया और कितना आगे हमें जाना है? लगता है कि आवाज सुरभि अग्रवाल जी के पास नहीं आ रही है। प्रोफेसर अजय राणा, यही सवाल अगर मैं आपसे रखूं, कितना बड़ा आप देखते हैं कि अभी तक हम आए हैं और कितना आगे हमें जाना है? धन्यवाद। इनफैक्ट जो अभी ड्यूरिंग पेंडेमिक हमने देखा है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो मिशन है, जो मैंने स्पीच पे भी सुना कि 750 मिलियन यूजर्स फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, एंड इस पेंडेमिक में हमने ये रियलाइज किया है कि हमारा जो देश है, जो उसकी जो जनता है, जो हमारे नागरिक हैं, वो किसी भी चीज को पकड़ने में कितने माहिर हैं, हम कितनी जल्दी ग्रैस्प करते हैं। पहले एक ट्रेडिशन होता था कि IT और ITES कंपनीज ही जो है आगे बढ़ती हैं, वो वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं, बट ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक फॉर लास्ट 9 months एंटायर कंट्री हैव अ स्कोप। बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जो आज इंटरनेट हमारे देश में जो यूज कर रहे हैं लोग, वो अभी भी हमारे पास अराउंड 55% तक का स्कोप है, कि अराउंड 45% जो पॉपुलेशन है, जो हमारे गांव में और दूर दराज के एरिया में रह रही हैं, वो आज भी इंटरनेट थ्रू मोबाइल यूज कर रही हैं। हमें ये चेक करना है कि जो हमारी बैंडविड्थ है, जो स्कोप है, जो अभी हमारे SCO मीट में कहा गया कि हमारे इंडिया में यस हम पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आते हैं जी, और जो कंपनीज हैं, जो बाकी देश हैं, वो हमारे देश पे नजर लगा के बैठे हैं कि अगर इनका अभी तक 45% जनता थ्रू मोबाइल इंटरनेट एक्सेस करती है, कि अगर उनको हम फैसिलिटीज दें, रिसोर्सेज दें, तो रियल एक चमत्कार होगा। और हमारा देश सारी दुनिया की नजरों में है। हमने हर सेक्टर में काम किया है। इस सेक्टर में अगर आप देखें, हमारी जो टॉप कंपनी है, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, सारी कंपनी जहां कट डाउन कर रही है अक्रॉस द वर्ल्ड, जहां बड़े बड़े देश, सुपर पावर, जहां पर लोगों की कटौती कर रही हैं, वहां पे ये हमारी तीनों कंपनी जो हैं डिविडेंड दे रही हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही हैं, रिक्रूटमेंट कर रही हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और जो नितिन गडकरी जी ने कहा था जी कि TCS का शेयर 32% है, या इन्फोसिस का 42%, या विप्रो का 41% है, ये 2024 तक छोटा मोटा नहीं $5 ट्रिलियन का होगा। तो ये स्कोप अभी है हमारे देश में आने वाले समय में, और हमें इस महामारी को ये नहीं समझना चाहिए कि ठीक है इससे हमें सीखना चाहिए कि जो हमारी आगे आने वाली नस्ल है, जो हमारा देश है, अगर हम आगे बढ़ के देखें कि पूरे इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में, जहां पर पूरे वर्ल्ड क्राइसिस में घूम रहा है, और हमारा देश उन सब चीजों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत स्कोप है सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। Right, a lot of scope, a lot of potential, and that is what was said at the SCO Heads of State Council meet.
Coming to you, Surbhi, India, we believe, is establishing itself as a major presence in the digital economy by any number of key metrics, from internet connections to app downloads. There is huge volume, there is huge growth of that economy. It exceeds now most other countries. How do we understand this? Because as far as we know, this implies using technology, using content that is mostly generated abroad. The income generation too, how far can it actually sustain living? Sometime back we heard a clip of Mr. Mark Zuckerberg, who recently spoke at a Facebook event. So some of the key pointers that he said was that how India has taken a lead in creating platforms like UPI or Aadhaar, and other countries can actually take India's lead in that and create some of those digital ecosystems. So if you look at the sheer numbers, 700 million internet users, that's probably the largest anywhere in the world. Probably the only exception is China, which is again a closed internet market. If we look at the demographics, so many young people in India, so many smartphones, right? So it automatically gives us an edge. This is the reason why companies like Google and Facebook are looking at India so keenly. They're so interested in India. In fact, for some of these companies, India has become a test bed of sorts. Giving the example of Facebook again, they're testing, building products for India. Similar for Google, they're building products for India first, then they, taking them globally. If I could talk a little bit about the government's, initiative in the last 2 years, what really stands out is that they're approaching this entire ecosystem from a end-to-end perspective. So, the expert said recently that sometime back it was only about the IT sector, but now the government is trying to encourage other sectors also. If you look at mobile manufacturing, then the incentives that have been announced, some 50,000 crores of incentives that have announced, and that has led to investments which will create mobile goods to the tune of 11.5 lakh crores in the next 5 years. Out of that, 5 lakh crore will be exported. The government has also recently launched a lot of schemes under the Atmanirbhar Bharat to promote mobile apps, be it social media or short messaging, even video conferencing apps, because after the coronavirus pandemic, video conferencing has become very popular. And recently, they've also come out with a proposal to invite companies to set up semiconductor fabs, right? These are just some of the examples of how the government is approaching this ecosystem in an end-to-end fashion, so that we kind of have a holistic approach to this, and the entire digital ecosystem gets a boost. जी बिल्कुल, यहाँ पर रुक करेंगे। सुबीबल भट्टाचार्य जी, आपका और आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जब डिजिटल लेन देन की बात होती है या डिजिटल कार्य व्यवहार की बात होती है, तो कई बार बहुत सारी आशंकाएं मन में जन्म लेती हैं। एक जो साधारण नागरिक है, जो बिल्कुल कहे कि डिजिटली बहुत साक्षर नहीं है, खासतौर पर उन लोगों के लिए, और हो भी क्यों ना, क्योंकि साइबर सुरक्षा का मुद्दा जो है एक बार दिमाग में जरूर आता है। जहां पर एटीएम की क्लोनिंग हो जाती हो, जहां पर डिजिटल लेन देन में कई बार चूक हो जाती हो, और जो बैंक अकाउंट हैक हो जाते हो, तो ऐसे में जो साइबर सुरक्षा का मुद्दा है, जो साइबर अपराधों को रोकने के लिहाज से कितना प्रभावी है आपको लगता है जो हमारा तंत्र है, और उसको और आगे कितना और प्रभावी बनाने की जरूरत है? देखिए निखिल जी, जहां तक साइबर सिक्योरिटी की बात है और अपनी डिजिटल इंडिया की प्रोग्राम के माध्यम से अगर आप देखें, आपने बिजनेस और कंज्यूमर इंटरेस्ट की बात जिक्र किया है यहाँ पे। अगर आप देखें, आप पिछले 20 साल से हमारी जो आईटी इंडस्ट्री या सर्विसेज जो एक्सपोर्ट होते रहे हैं, ये सारे हमारे कोई एक स्पेसिफिक डाटा प्रोटेक्शन लॉ ना रहते भी हुए होते रहे, और ये इसीलिए हुए क्योंकि जितने सारे सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स ये सारे कंपनीज साइन करते हैं फॉर्च्यून 500 कंपनी के साथ, इनको इन्होंने पूरी सिक्योर और एकदम बाइबल की तरह मान के चले। इसीलिए हमारे यहाँ से साइबर लैप्सेस या कुछ घटनाएं बहुत कम हुए, जिस आधार या जिस मात्रा में हम ऐसे काम कर रहे हैं। तो जहां तक आज हम डाटा की महत्व समझ रहे हैं, जहां हम आज डाटा की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सारे जो कंपनी पिछले 20 साल से जो अपने
एक्टिविटीज और अपने एग्जाम्पल से दे आए, यही एक नेशनल कॉन्फिडेंस और पब्लिक कॉन्फिडेंस देता है कि हमारा जो प्रैक्टिसेस है जो होते आ रहे अपनी इंडस्ट्रीज से, ये एक अच्छी प्रैक्टिसेस है और इनमें सतर्कता है और सालों सालों में इन्होंने इसको कायम रखा है। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप कंज्यूमर में आते हैं, जहां तक जैसे प्रोफेसर साहब ने भी थोड़ा पहले आंकड़ा भी जिक्र किया, और अगर हम देखें कि अगर 2015 जब डिजिटल इंडिया शुरू हुआ, जब करीब 30 करोड़ आबादी जो डिजिटली कनेक्टेड थे, और आज हम जहां तक 75 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये जो 5 साल में डबल ग्रोथ हुए और इतने लोग आके शामिल हो गए अपने नेटवर्क्स में, तो इनके लिए भी डिजिटल इंडिया के माध्यम में भी साइबर सिक्योरिटी की व्यवस्था या साइबर सिक्योरिटी साथ साथ में जोड़ा गया है। और जहां तक एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है जो 2013 में पहले घोषित किया गया था, और इसका आज इसका चेंजेस सारे हो रहा है। हम साथ में कानूनों में भी चेंजेस कर रहे हैं। हम डाटा प्रोटेक्शन बिल पार्लियामेंट में ले चुके हैं, इसके ऊपर अब एक्सपर्ट कमेटी पार्लियामेंट्रियंस के काम हो रहे हैं, तो ये भी कुछ ही समय में ये पारित हो जाएगा। आईटी एक्ट में चेंजेस आ रहे हैं और सारे इंटरमीडिएट्स की रेगुलेशंस के ऊपर कुछ चेंजेस होंगे। तो ये सरकार जो है, सरकार यहाँ पे सतर्क है कि जी, सरकार सतर्क है सुविमल जी, लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि जो साइबर अपराधी हैं उन पर शिकंजा कसना थोड़ा दिक्कत तलब हो जाता है, बहुत बार बहुत आसान नहीं होता। कि इसको भी आसान करने की कुछ कोशिश की जा रही है, कोई तंत्र बनाया जा रहा है इसके लिए? नहीं, बिल्कुल। अपने अगर आप देखें लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट्स जो है, लॉ एनफोर्समेंट हर राज्य की जो लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, उस सब में आज साइबर सिक्योरिटी के अलग सेल्स होते हैं और उनके बीच में भी काफी ट्रेनिंग होते रहे और काफी सारे केसेस ये लोग आज के डेट में सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम देखें जिस मात्रा में केसेस होते हैं और जिस मात्रा में आपकी ये इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आज के दिन में उतनी खराब नहीं है। और ये एक डायनेमिकली इवॉल्विंग मीडियम है। क्राइम्स, साइबर क्राइम्स ये मुटेट होते रहते हैं, ये नए नए तरीका से आते रहते हैं। तो इसके लिए अब अपनी सरकार की जो प्रयास है, अपनी जो पुलिस संस्थाओं की जो प्रयास है, मुझे लगता है एक पॉजिटिव अप्रोच से और ऑन द जॉब अप्रोच हमेशा रही है। तो हाँ, बात है कि अपनी जितनी उपभोक्ता है उनको और सतर्क रहने के लिए हमें और अवेयरनेस ड्राइव्स करना चाहिए। जैसे बैंक से बहुत बुजुर्ग लोगों के अपनी बैंक के अकाउंट से पैसे चले जाते हैं क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग इस्तेमाल करते हैं और इनकी इंफॉर्मेशन लेके, पासवर्ड लेके पैसा निकाल लेते। तो ऐसे सारे बैंक्स या जितने सारे कंज्यूमर इंटरफेसिंग संस्था है, इनकी तरफ से और अवेयरनेस ड्राइव होना चाहिए और उसमें सरकार की सतर्कता या सरकार की प्रेशर इनके ऊपर और होना चाहिए। लेकिन ये एक डिजिटल इवॉल्विंग मीडियम है और चलते रहेगा। और इसके साथ साथ जितने लोगों की एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं, वो खुद अपने आप के एक डिसिप्लिन की एक्सपीरियंस जोड़ रहे हैं और धीरे 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 खुद समझ रहे हैं कि कहाँ ठीक रहता है, कहाँ क्या करना ठीक नहीं रहता है। Right. Mr. Rana, coming to you, my concern is about when we talk about vocal for local. A company like Facebook has been working very hard to integrate itself into the region. Now, after COVID, there is a new wave of Indian digital commerce. The reach of the internet facilitated by the government of India has made it possible for every Indian, perhaps even in the remotest corners, to access Facebook and thereby generate a lot of revenue. Who profits from this kind of a commerce? What are we to understand from this? Right, Mr. Rana. Right, if you can hear me, Mr. Rana. Yeah, hello. This is question to me. I think I am not able to about the entire point. Right. Well, but मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा इसमें, जो आपने कहा था कि जो साइबर अटैकर्स हैं, जो हैकर्स हैं, आपसे मैं एक बात बोलना चाहूंगा। अभी हमने जो कोविड की जो वैक्सीन ली है, उस कोविड की वैक्सीन का भी हम कोई भी चीज अगर बनाते हैं तो जो हैकर्स हैं, जो पर्सन्स हैं, वो एक पैरेलली काम करते हैं कि हम इसको, ये अब फॉल्ट हमारा ये नहीं कि उसमें कोई फॉल्ट था, बट जो जागरूक हैं, जो पॉपुलेशंस हैं, जो उसको एंड यूजर यूज कर रहे हैं, आपने क्रेडिट कार्ड का कहा क्लोन बना लेते हैं, बट उसमें फेसबुक की जगह आप फेसलुक करो,
अब एक जो पोटेंशियल क्लाइंट है, जब वो उस फैसिलिटीज को यूज करता है तो उसके साथ साथ चेक करता है उसके क्लोन कौन से हो रहे हैं। जब वो एक्सेस करता है, अपना पिन शेयर करता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी हमारे यहाँ सिक्योरिटी लूपहोल्स, मेरे ख्याल से मेरे यहाँ कोई अटैक नहीं हुआ। अभी जो सज्जन बोल रहे हैं उनके साथ अटैक नहीं हुआ, आपके साथ अटैक नहीं हुआ, बिकॉज आप जागरूक हैं। हमने कोई भी चीज लॉन्च करने से पहले उसको जो बना रहे हैं उन्होंने बहुत R&D की है, बट जो कस्टमर है मुझसे जागरूक कि आपको अपने कोई भी चीज कॉम्बिनेशन नहीं बतानी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना CVV नंबर, अपना जो पैन कार्ड का नंबर अगर आप शेयर करेंगे तो आपके लूप होल्स कहीं ना कहीं आपके जो है वो आपकी सिक्योरिटी डाटा जाएगा, आपका पैसा मनी फ्लो होगा। सेकंड, लोगों को ये भी नहीं पता, अगर आपका फ्रॉड हो जाता है तो आप बैंक को बोलो, बिकॉज आप हर महीने 2 रुपए 4 रुपए इंश्योरेंस का देते हो। अगर आप बैंक के पास जाएंगे, FIR लॉन्च करेंगे तो आपका पैसा रिम्बर्स करेंगे वो, बिकॉज उनको पता होता है आपका पैसे का मूवमेंट कहाँ हुआ है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्रॉड हमारी गलती से होता है। फ्रॉड हमारी गलती से तब होता है जब हम एक चीज को, अगर फेसबुक को देख रहे हैं तो हम फेसबुक पे ही फोकस करें जब तक कि हमारा काम पूरा ना हो जाए। उसके साथ साथ पॉपअप विंडोज बहुत सारी आती हैं। अगर आप पॉपअप विंडो पे ओके करोगे तो आप जानते हैं वो आपके बैकग्राउंड में आपके सिस्टम को एक्सेस करेगा। हमें इन चीजों को, अपने जो क्लाइंट है, जो हमारा यूजर है, उसको एजुकेट करना होगा। मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहूंगा, फ्रॉड तब होता है जब हम कोई चीज जल्दबाजी में लॉन्च कर देते हैं बिना पब्लिक को एजुकेट किए हुए। हमने आधार कार्ड लॉन्च किया, आधार कार्ड आप जाओ, अपना आप रेटिना का दे रहे हो, फिंगरप्रिंट दे रहे हो, आप वर्ल्ड में नंबर 1 ID डिजिटल है, जो हमारी गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है। यहाँ पर फ्रॉड होने के बहुत कम चांसेस है, बिकॉज हमने सिक्योरिटी पैरामीटर बहुत लगाए। मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ, आपने देखा होगा हम पासपोर्ट हमारे घर आता है, वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस से क्यों आता है, वो कोरियर से क्यों नहीं आता? बिकॉज उन्होंने इंश्योर किए हैं कि आपको अपना कुछ हमें आइडेंटिटी दिखानी होगी, तभी आपको हम हैंड ओवर करेंगे। तो मैं इस बात से बिल्कुल जो मेरे साइबर एक्सपर्ट ने बोला है उनकी बात से एग्री करता हूँ, और एक मैसेज देना चाहता हूँ, हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर सरकार अच्छा काम करती है, बशर्त है कि हम उसको लॉन्च करने से पहले उस पॉपुलेशन को एजुकेट करें, उसको लीड करें कि आपको ऐसे करना है। आपने क्रेडिट कार्ड मेरे घर भेजा, मैं एक वीडियो भेजूं, जब तक उस वीडियो को मैं ना देख लूं, जब तक उस वीडियो को गो थ्रू ना कर लूं, मेरा क्रेडिट कार्ड एक्टिव ना हो। मैं उसको सुनूं, और जब मैं उसके सामने लाइव हूं और लाइव बैठूं और देखूं कि हाँ मैंने पूरा सुन लिया, मैं उसमें एक्सेप्ट करूं, तब वो ट्रांजैक्शन करें। नहीं हो सकता फ्रॉड। So right, as Mr. Rana has said, the onus is on the user. Many I of think the I'm times. not able to got your voice, ma'am. Your voice is not clear to me. I'm so sorry that I am not taking about this point, ma'am. Extremely sorry, ma'am. Right, as Mr. Rana was saying, the onus is on the user. Many a time, not to share your CVV or personal details, not to share your date of birth, and always make sure that you're concentrating on that particular app only, because there may be so many pop-ups that keep coming around. जब आप कहती हैं कि the onus lies on the users, तो इसी से जुड़ा हुआ दरअसल सवाल मेरा सुरभि जी से है कि सुरभि जी, फिर सवाल उठता है कि लोगों को डिजिटली साक्षर बनाया जाए, उनको न सिर्फ साक्षर बनाया जाए, एजुकेट किया जाए। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसमें दो चैलेंजेस हैं। एक तो जो बहुत बड़ी जो हमारी गांव की जो पॉपुलेशन है, ग्रामीण सुदूर इलाकों में रहने वाली है, उन अंचलों में भी रहने वाले लोगों तक पहली बात तो डिजिटल पहुंच हो, वो सुनिश्चित करना, और न सिर्फ डिजिटल पहुंच हो बल्कि वो एजुकेट भी हो डिजिटली, ताकि इस तरह की गलतियां ना करें, उनके साथ इस तरह के कोई फ्रॉड्स ना हो सके। राइट, तो जैसा कि आपने कहा, आई थिंक मैं थोड़ा सा राणा जी के साथ अग्री करती हूँ और थोड़ा सा डिसएग्री भी करती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो सारा ओनस है वो यूजर्स के ऊपर है। नाउ यू नो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर 700 मिलियन internet users in the country. There are around 1 billion smartphones and 2 billion mobile numbers. So you can imagine, and out of that, you know, many of these people are in, you know, not just in rural areas, but even in urban areas. They're not very digitally literate. In fact, most, you know, many of the large population is illiterate. You know, they are trying to use mobile phones. They're trying to use smartphones. तो उसमें अगर हम सारी जिम्मेदारी यूजर के ऊपर ठहरा देते हैं, तो ये सही नहीं होगा। बिकॉज कंपनीज को, गवर्नमेंट को, जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बीट कंपनीज, यू नो, जो चाहे पेमेंट कंपनीज हो, चाहे सोशल मीडिया कंपनीज हो, या किसी भी तरह की कॉमर्स कंपनीज हो, यू नो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो यूजर्स को हर एक तरह से एजुकेट करें।
ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं. अगर आप if you talk to say any of the companies, they'll tell you that they're running massive digital literacy programs in the rural areas. यहाँ पर आपको ये इस चर्चा पे हम जारी रखेंगे. फिलहाल आपको अपने दर्शकों को लिए चलेंगे. सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि हम बता दें कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जाए, एक छोटी सी बात ये कर लें कि Right, let's go across. Listen to Union Minister Prakash Javadekar speak. जी. Right, Union Minister Prakash Javadekar there. And you're watching Atmanirbhar Bharat, and in a short while from now, we'll be taking you across to listen to what the Union Minister has to say. And जी बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा करेंगे सूचना और प्रसारण मंत्री. लेकिन हम बता दें कि इनके पास जाने से पहले जिस विषय को मैं कह रहा था वो ये सिर्फ ये कह रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि गांव की सुदूर लोगों तक डिजिटल इंडिया की पहुंच हो. सबसे बड़ी बात ये है. जरूर हम ऑलरेडी डिजिटल इंडिया हैज अचीव्ड दैट टू अ ग्रेट एक्सटेंट. और फिर दूसरी चीज जो बात आगे हो रही थी कि डिजिटली एजुकेट भी हो लोग. राइट. Digital, right? Building a digital infrastructure has been achieved to a great extent. The target year was 2020. So the evaluation will have to be done. The corona pandemic has put it back by a bit. जी, आइए सुनते हैं सूचना प्रसारण मंत्री को. राहुल गांधी कल रक्षा विषयक स्थायी समिति के बैठक से वॉकआउट कर गए. उनका कहना था कि महत्वपूर्ण विषयों के बदले छोटे छोटे विषय क्यों लिए जा रहे हैं. शायद उनको पता नहीं कि एजेंडा तय करने की भी बैठक होती है कि इस वर्ष में क्या क्या विषय लेने हैं. उस बैठक में तो वो अनुपस्थित थे. पिछले 1.5 साल में कुल मिला के 14 बैठक हुई. 14 बैठकों में से 2 ही बैठकों में वो उपस्थित रहे, 12 में एब्सेंट रहे. अब खुद अनुपस्थित रहेंगे. जब एजेंडा में विषय सुझाने का विषय था तब नहीं बोलेंगे. उनके साथी भी जो विषय वो कहना चाहते वो नहीं बोलेंगे और फिर दोष देंगे सारी व्यवस्था को, भाजपा को, कि इस तरह से हम महत्वपूर्ण विषय नहीं लिए जा रहे. कैंटोनमेंट का विषय हो या बाकी विषय हो, सदस्यों ने जो बताए वही विषयों की चर्चा होती है. लेकिन ये भी उनको मालूम नहीं. और तो और उनको संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कितना आदर है. वो वॉकआउट कर गए एज इफ ये कोई प्रोटेस्ट का केंद्र है. स्थायी समिति में प्रोटेस्ट और पब्लिक के लिए भाषण देने का नहीं है स्थान वो. और हमें मालूम है राहुल गांधी जी ने जब वो सत्ता में थे तब भी मनमोहन सरकार ने जो एक प्रस्ताव पारित किया था कैबिनेट में, कैबिनेट के फैसले को आप सबके समक्ष पत्रकार वार्ता में वो फाड़ दिया और कचरे की टोकरी में डाल दिया. तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उनकी यह आस्था है. और वही कल दिखा कि डिफेंस कमेटी से बाहर भी आए और उसमें क्यों बाहर आए ये बताया भी बाहर आके. स्थायी समिति के बैठक का रिपोर्टिंग नहीं होता है और मेंबर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू गिव देयर रिएक्शन. लेकिन ये पहले अनुपस्थित रहेंगे, अपना जो एजेंडा चाहते हैं वो बताएंगे नहीं और फिर अचानक 14 में से 2 ही बैठकों में आएंगे
और बैठकों में आकर फिर ये कहेंगे कि महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा नहीं हो रही है। ये सांसदीय प्रणाली को और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है। ये संवैधानिक संस्थाओं के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसका ये परिचायक है। और जब पहले ऑर्डिनेंस फाड़ा था वो भी इसी का उदाहरण एक है। और इसलिए हम इस रवैये की भर्त्सना करते हैं और राहुल गांधी को संवैधानिक संस्थाओं का आदर करने सीखना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र में उनकी भूमिका और नगण्य होती जाएगी। तो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय पर एक अपनी बात कह रहे थे सूचना और प्रसारण मंत्री बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, और उन्होंने साफ तौर पर एक राजनीतिक विषय उठाया, राहुल गांधी के डिफेंस कमेटी की बैठक से वॉकआउट होने का विषय उठाया। फिलहाल इस चर्चा को वापस आगे बढ़ाते हैं। राइट, we go across now to the National Media Center where there's a press conference underway. All-round championship, team championship. So there are 51 such medals have been proposed in 4 events and 7 categories of the Yogasana. Next, please. And it is also a sub-junior and senior level. So a pilot championship of traditional Yogasana by the name of National Individual Yogasana Sports Championship, it is in virtual mode, is proposed just to familiarize and popularize this as a sport in February 2021. Then districts and states and national world championships in Yogasana are proposed in the entire year of 2021. More than 25 state and national level Yogasana association federations have expressed their willingness to join the initiatives, and further consultation with all other stakeholders are also being made. Next, please. Proposed promotion and development activities. Development of a patented electronic scoring system, I was just mentioning this, for the Yogasana Championships in India and globally. So this is already on board, and then we are working with Transtadia of Ahmedabad, and they are helping us for getting this standardized. Courses and certification of coaches, referees, judges, and director of competition is also there. Coaching camps for players, we have already started one such camp in Maharashtra recently last week. Broadcast friendly packaging of the sport into leagues, shows and competitions so that it becomes viable. Next, please. Proposed promotions to development activities, there are some more, like as I mentioned, 51 medals, then players ranking system on the basis of their performance at state, national and international level. To organize workshops, seminar, conferences, conclaves for promotion. And every state and country, there is a goal to develop academies for the sport as a specified and operated with the state guidelines and protocols. That is also, visualized. And Yogasana is sport discipline in school games, university games, Hello India, national games, SARC games, Asian games, even at the level of Olympic games is the ultimate goal. And also creating job opportunities for the athletes and who is performing and taking up Yogasana as a sport. Next. A complete athlete management program is visualized to launch Yogasana program for broadcast and telecast to generate revenue for self-reliance. And तो योगासना को लेकर के उसके प्रसार को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। और आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार रुक करते हैं अपनी जो हमारा विषय है आज आत्मनिर्भर भारत का, कि किस तरह से जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसके विषय में चर्चा हो रही थी। और that India has been able to build over the years ever since Digital India was launched. In particular, various services, e-governance portals have made available goods and services to the Indian public, and increased connectivity has been a major part of that. Recently, with the government's decision to open public Wi-Fi hotspots across the country, the thrust is on rural India here. We must remember on facilitating internet connectivity, internet access and digital literacy for the poor. That is what is Prime Minister Narendra Modi's focus. Coming to you, सुरभि जी से हम चर्चा कर रहे थे, एक बार इस विषय पर अगर आप मुझे अलाउ करें. Right, but like
जी सुरभि जी से बेसिकली आप ही की जो आपने बताया था कि ग्रामीण भारत तक इसकी पहुंच के लिए जो पीएम वाणी मैडम जो लॉन्च हुआ है और जिसके तहत ग्रामीण इलाकों तक वाईफाई की पहुंचाने की देने की कोशिश की जाने की बात कही जा रही है, ये कितना सक्षम हो सकेगा कि जो ये डिजिटल इकोसिस्टम है इसको ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाया जा सकेगा और जो एक हमारा जो सपना है कि हर भारतीय इससे अछूता ना रह जाए वो पूरा हो सकेगा? जी बिल्कुल। तो एक डिजिटल इंडिया का एक बहुत अहम हिस्सा है भारत नेट फाइबर। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने अभी कुछ महीनों पहले ही बोला है कि भारत के हर विलेज में भारत नेट फाइबर पहुंचाया जाएगा। 6 लाख के करीबन विलेजेस हैं कंट्री में। लेकिन फाइबर जो होता है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी हाउस होल्ड टू गेट अ फाइबर कनेक्शन। तो उस फाइबर के माध्यम से हम अगर एक वाईफाई हॉटस्पॉट मेन एरियाज में लगा दें एक विलेज के, तो उसका जो रीच है वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। तो इसके लिए एक डिजिटल इंडिया का ही एक हिस्सा है CSCs, कॉमन सर्विस सेंटर्स, जो ऑलरेडी करीबन 4 लाख के आसपास ऑलरेडी हैं और उन्होंने 1 लाख विलेजेस में भारत नेट फाइबर ऑलरेडी लगा दिया है, जिसके थ्रू उन्होंने 2 लाख के करीबन हॉटस्पॉट्स, वाईफाई हॉटस्पॉट सेटअप कर दिए हैं। तो जस्ट टू क्विकली स्टार्ट दिस PM वानी स्कीम, अंडर दैट प्रोजेक्ट ये जो एग्जिस्टिंग वाईफाई हॉटस्पॉट्स हैं उनको वानी कंप्लायंट कर दिया जाएगा। तो जब मैं कहती हूँ कि वानी कंप्लायंट, तो उसका मतलब होता है कि अगर आप एक हॉटस्पॉट से दूसरे हॉटस्पॉट जाते हैं तो आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती या फिर आपको दोबारा से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसका जो मॉडल है वो ये है कि अगर एक कोई गांव का सपोज एक स्टूडेंट है तो वो एक 5 रुपए का एक छोटा सा एक कूपन खरीद करके से 1 GB डेटा ले सकता है। पर अगर वो ट्रैवल कर रहा है एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो उसको दोबारा से लॉग इन करने की जरूरत नहीं है, उसका वही कनेक्शन जो है वो कंटिन्यू चलेगा। तो एक 1 नेशन 1 इंटरनेट टाइप का ये मॉडल है जिसका हो रहा है। और सबसे ज्यादा इसका जो बेनिफिट है वो रूरल एरियाज में होगा, बिकॉज अर्बन एरियाज में तो मोबाइल फोन्स के थ्रू 4G कनेक्टिविटी काफी पॉपुलर है, पर रूरल एरियाज जो हैं वहां पे अभी भी रीच जो है वो इतनी यूबिक्विटस नहीं है। जी Right, Surbhi ji, and coming across to you, Mr. Subimol, when we talk about a company, say like Facebook, that has been trying to build its presence in this region for so many years. Facebook is a platform for goods and services, even though it is, as we all know, a social network. But at the end of the day, who profits? Is it the company that's providing the internet connectivity? Is it Facebook itself, or are the people who are availing of its services in the rural areas, how are they benefited? Can I say something on this with your permission to the ma'am? I think ma'am, in fact, Rukma ji, I think, can I say something? Right, जी, right. जी. In fact, the Facebook is not provide the internet facilities. First, there's the important thing that Facebook is like a company who run many applications, who Yes. provide the various facilities. But A easy to platform, use. yes, that's what I was saying. Easy to It's a use, platform. easy to Right. use. They are the social media network. They are the, in fact, around the world, around more than 70,000 social media networks going on like Facebook. But Yes. Facebook is not provide any internet facilities. No, What are the no. challenges we have? If you Right. go with Right. What any I'm governor of- asking, Mr. Rana, is that there Yeah. are so many services involved here. There is some profit here for somebody. That's why I'm come to that point. Who is profiting? That's what can I'd I like answer to my know. question, Mr. Rana? There is a relationship between we public should and the know- private sector. Why the private sector is more interested in NCR or the metropolitan cities? You will easily find that all governor house across our country, you will find the bandwidth and the internet connectivity is superb, because our NIC, National Informatics Center, who is responsible to broadcast all these network and technology facilities. But what about the other private vendors? Is they play the equal role, whatever in the metropolitan cities? I request you from your channel, that they have some social responsibility. If they are earning a lot of profit from metropolitan cities, now they are responsible to spend at least 5 to 10% from their profit to the other part. Point number one. Point number two, like Facebook, Twitter, LinkedIn, they attract the peoples from across the country
व्हाट अबाउट द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंडिया? वो आते हैं हमारे देश से, रेवेन्यू कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, भाग जाते हैं। मैं ही चाहता हूं कि अगर वो आते हैं और हमारे यहाँ उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग क्या है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो हमें जो प्रॉफिट उनका है, जो CSR का पैसा है, उनको उसी कंट्री में लगाना चाहिए जिस कंट्री से वो फैसिलिटीज को ले रहे हैं या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। दैट इज माय पॉइंट। जी, सुबिमल भट्टाचार्य जी, आपका कुछ पॉइंट था, आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, बेसिकली ये बात है कि ये जो इकोसिस्टम है, जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे उपभोक्ता है, जहाँ पे सरकार की एक माध्यम है रूरल एरियाज में पहुँचने की। अब देखिए, सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी के कारण हमारे देश में बहुत मात्रा में इंटरनेट उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। हम असम के नॉर्थ ईस्ट में हम बहुत इलाका में जाते रहते हैं और हम देखते रहते हैं कि आज मोबाइल के माध्यम से फेसबुक की पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में है कि वो अपने लोगों के साथ संपर्क रखें, जहां भी मजदूर बाहर गए काम करने या कोई रिश्तेदार और कहीं गए। तो यहाँ पे जो ये बिजनेस वाला इकोसिस्टम चलता है, हाँ जरूर फेसबुक का अपना एड रेवेन्यू या जितनी उनकी प्रोलिफरेशन होते हैं उससे उनको फायदा है। जितने सारे आज फेसबुक की प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर्विसेज प्रोवाइडेड कर, अगर आप देखें फेसबुक बिजनेस की आइकन के माध्यम से बहुत लोग गाड़ी बेच रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, फार्म बेच रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे के भी सामान बेच रहे हैं, जहाँ जो फेसबुक की दायित्व होता है ऐसे एड्स को वहां हटाने के लिए। इनके अलावा भी जो रूरल एरिया से जिनके लोगों को कुछ लोग लगाते हैं, जैसे मेरे को पता है किसी को मिजोरम की कोई अपने हस्तकला की सामान फेसबुक के माध्यम से आज उनका एक रेगुलर बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो ऐसे सारे केसेस भी है जो ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कहीं तरीका से एक संतुलन स्थिति आए जिसमें से ये प्रॉफिटेबिलिटी जो है इक्विटिवली किसी तरीका से डिस्ट्रीब्यूट होए। फेसबुक की इनकम इसी कोई बेसिकली एड से आते हैं, जितने उनकी रीच होते हैं उसको देख के उनकी एडवर्टाइजर्स देते रहेंगे। सरकार का ग्रेटर गुड एक वो रहता है कि ये एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर एक क्रिएट करके दे रहा है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स और आगे जाए, और ये जितने सारे उपभोक्ता या जिनके अपने अपने छोटे छोटे SMEs या सिंगल बिजनेस ओनर्स है, इनके लिए एक बड़ा अच्छा ओपन ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है अपना सामान बेचने का, अपना कला को आगे रखने का। तो ऐसे बहुत लोगों का फायदा होता है। तो मुझे लगता है कि हमें देखना पड़ेगा कि कैसे ऐसे जो फर फ्लंग एरियाज में मुझे याद है अभी भी 2001 में जब एक अभी जैसा CSC की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्पेसिफिक CSC प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें से कुछ गांवों में बिजली नहीं है लेकिन जो कंप्यूटर गया ये सेंटर के लिए, उसी के लिए नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रिसिटी गया हुआ है। तो ऐसे बहुत लोग हैं वहां के जो इस कारण बेनिफिट हो सकते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए बेनिफिट हो सकते हैं और उनको बिजनेस करने का मौका मिलता है। और जहां तक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की सवाल है, ये उसमें क्लियर कट है कि डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन तीसरा जो पहलू है। Right, Union Sports, right. Subimal ji will come back to you, but right now Union Sports Minister Kiren Rijiju is speaking. Let's go across and listen to what he's saying. To work closely with the Ayush Ministry. You have heard the brief presentation from the Secretary. The Ayush Ministry has done a commendable job in terms of creating a perfect platform to launch Yogasan as a competing sport. It's a competitive sport going on long time, since very long time. But formally, it has to be recognized by the Government of India so that it becomes an official and recognized competitive sports. So today is a big day we are launching here. And I'm sure it will go a long way, as the Ayush Secretary has already mentioned, that it should be included in various competition level, in the national level, international level. Ultimately, the
the aim and objective of any sport is to be included in Olympics. But this is a beginning of a long journey. We will have to make it very proper, authentic, and well accepted form of a sport. That is why these technicalities, which are being already explained, are to be given a very, very professional touch, because the credibility depends on how we organize a particular event or a particular sport. तो मैं ये देख रहा हूं कि योगासन का आगे का रास्ता अनलिमिटेड है, ये बहुत आगे जाएगा। मैं 1987 में जब यूएसएसआर में गए थे तो हम लोग का बड़ा डेलीगेशन था, तो उस बड़े डेलीगेशन में एक योगी भी था जिसका नाम था बाल मुकुंद। 1987 में मैं स्टूडेंट था, तो हम लोग वहाँ यूएसएसआर में गया तो वहाँ कल्चर इवेंट वगैरह हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया, लेकिन सबसे पॉपुलर था योगासन। जो योगासन डेमोन्स्ट्रेशन किया ओपन फील्ड में, तो उस समय के सोवियत लोगों ने इतना जम के उसको तारीफ किया और उसको अपलोड किया, बहुत सराहना किया कि ये बहुत यूनिक है, बहुत खूबसूरत है और इंडिया का ये ट्रेडिशनल हेरिटेज है। तो खेल मंत्री किरेन रिजिजू जिन्होंने एक खेल स्पर्धा के तौर पर योगासन का शुभारंभ किया और बताया कि उम्मीद जताई कि निश्चित तौर पर बहुत आगे जाएंगे इस योगासन की स्पर्धा के तौर पर, ओलंपिक तक जाना इसका लक्ष्य है। फिलहाल एक बार फिर वापस लौटते हैं अपने मूल चर्चा पर और डिजिटल इकोसिस्टम भारत का, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब चूंकि इस कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर पहुंच चुके हैं, तो जो लास्ट क्लोजिंग कमेंट्स है वो अपने खास मेहमानों से ले लेते हैं। सुरभि अग्रवाल जी आपके पास आते हैं और आपके कमेंट्स चाहेंगे, खास तौर पर जिसमें इस बात का आप जिक्र करें कि जो ग्रामीण अंचल में, जो सुदूर अंचलों में रहने वाले जो हमारे जो ग्रामीण भाई बहन हैं, उनको कैसे एजुकेट किया जाए डिजिटली, ये कैसे संभव हो सकेगा और आगे की राह क्या दिखती है आपको? राइट, तो जैसा कि मैं कह रही थी कि पहले भी बहुत सारे एफर्ट्स ऑलरेडी हो रहे हैं टू एजुकेट पीपल जो रूरल एरियाज में हैं या कंट्री के दूर दराज एरियाज में हैं, पर आई थिंक हमें बहुत ज्यादा और एफर्ट्स करने की जरूरत है, बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज पीपल आर नॉट लिटरेट and they are absolutely not digitally literate, so the risks are huge because जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं मोबाइल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, तो जो उसमें जो लॉस है स्पेशली फॉर पुअर पीपल, वो उनको बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अवेयरनेस कैंपेन्स गवर्नमेंट रन कर रही है या कंपनीज रन कर रही हैं, तो उनको कहीं ज्यादा इंक्रीज कर देना चाहिए। थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगी कि जैसे कि अभी हमने कोरोना के केस में गवर्नमेंट ने एक बहुत ही मैसिव इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया है कि आप कहीं भी किसी को भी फोन करते हैं तो पहले एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज आता है। तो व्हाई कांट वी हैव एफर्ट्स लाइक दैट? सिमिलरली जो ये डेटा प्रोटेक्शन बिल की, जैसे अभी सुमन जी ने बात करी, तो जब ये डेटा प्रोटेक्शन बिल आ जाएगा तो कंपनीज के ऊपर जो पेनल्टीज हैं वो कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इट विल मेक दिस कंपनीज रिस्पांसिबल टू मेक श्योर दैट फर्स्टली प्लेस enough measures to make sure that such frauds do not happen, to create awareness, and then also the complaints mechanism, the law enforcement mechanisms, that also has to be strengthened to a big level, I think. Right. Coming to you, Subhi Mall, we've come to the end of the program, as Nikhil just mentioned. When we talk about reaching out, when we talk about digital literacy, are we also talking not just about rural mindsets? Aren't we also talking about, an entire generation perhaps who has to re-educate itself, and the government's efforts working wonders in this regard? Well, I would think that digital literacy per se is in many cases easier than the normal literacy, because even if you take a child, you would see his propensity to be able to use a digital device is far much faster and far much more effective than once he touches the books and all.
But I would think that, you know, the problem is not necessarily a rural-urban kind of an issue. Yes. It's also a problem in the urban areas. Now, in my area, like in cyber, I find, you know, a lot of the well-educated people also falling a gullible prey to, you know, all the fraud emails and everything that come. So, as Surabhi had also just mentioned, a proper awareness campaign, you know, I always say this, that all the banks and all the organizations that have customer आपको एक that मिनट collect money. रोकना चाहेंगे सुबिमल जी, हमारे साथ में श्रीपद नायक जो आयुष मंत्री हैं वो एक प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, आइए देखते हैं. Aspirant and my dear friends, it gives me immense pleasure to be the part of this press conference to declare the Yogasana as a competitive sport, a joint venture of Ministry of Ayush and Ministry of Youth Affairs and Sports. Yoga is a cultural heritage of India and a way of healthy living, which is being practiced since the dawn of the Indus Valley civilization, having a history of more than 5,000 years. Yoga works well for physical, mental, and spiritual upliftment of the humanity. Yogasana is an integral and important component of yoga, which is psychophysical in nature and popular across the globe for its efficacy in fitness and wellness, general wellness. The origin of Yogasana competition was 100 years ago in India. They are still being conducted today at multiple levels. The vision behind making yoga as a competitive sport is to encourage the practice of yoga and help to improve the physical and mental well-being of the people of the ages and fitness level. This competition promote yoga as a sport will be enhanced interest in yoga among the people around the globe. Yogasana is a competitive sport doesn't seem to be an oxymoron to people in the yoga community. Some feels that yoga as a competition is a form of misappropriation. Despite the criticism of a few, competitive yoga does have a place in this world. The proper use of yoga is certainly up to the international and dependent of individual perception. Competitive yoga is an authentic practice entrenched in the Indian mythological system as well as history, shows that there is a room for all kinds of practice of yoga, including the competition. There can be a tournament competitive approach to yoga practice as well as the spiritual approach to it, and both can coexist in the same ecosystem. Many yoga organizations worldwide have been campaigning to turn yoga into a competitive sport. Yogasana as a competitive sport would have helped propagating unity in diversity at the global platform. Having Yogasana as a part of international sports events like Olympic, etc., would provide an opportunity to spread the awareness of Indian yoga and its innumerable health benefits to the world population. So yoga as a competitive sport, that is the focus of the Indian government now, and the ministries of sports and the Ministry of Ayush are both collaborating in order to ensure that the road to this is paved. Tournament oriented yoga to be promoted. बिल्कुल, और ये भी उम्मीद जताई कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय होगा और ओलंपिक तक ये पहुंच सकेगा योगासन एक खेल के तौर पर, ये उम्मीद जताई। तो आगे देखने की बात होगी कि किस तरह से खेल आगे बढ़ता है। फिलहाल आत्मनिर्भर भारत में हमारे तीनों मेहमानों का भी हम शुक्रिया करते हैं जिनसे इतनी विस्तार से हमने चर्चा की। सुबिमल भट्टाचार्य जी आपका शुक्रिया, सुरभि अग्रवाल जी और प्रोफेसर अजय राणा जी आपका भी बहुत शुक्रिया कि इस विषय पर आपने विस्तार से चर्चा की और हम तक अपने इनसाइट्स दिए। Many thanks to all our guests. Thank you so much for joining us. Well, a lot remains still to be discussed, but that's all we have time for in this edition of Atmanirbhar Bharat. Thanks for watching. Namaskar.